Hello everyone, online classes, class 9th, subject science, chapter 4, structure of the atoms, परमाणु की संरचना. In chapter 3 we have learned that atoms and molecules are the fundamental building blocks of matter. The existence of different kinds of matter is due to different atoms constituting them. Now the question arises: first, what makes the atoms of one element different from the atoms of another elements? And second, are atoms really individual as proposed by Dalton, or are there smaller constituents inside the atoms? We shall find out the answer to these questions. This chapter we will learn about subatomic particles and the various models that have been proposed to explain how these particles are arranged within the atoms. अब अध्याय जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास पे कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बने हैं. विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिससे वे बने होते हैं. अब प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है, और क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं, जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था कि परमाणुओं के भीतर छोटे अन्य घटक या विद्यमान होते हैं. इस अध्याय में हम इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा. हम अपरमाणुक कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे यह पता चलता है कि कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं. A major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atoms as well as to explain its important properties. The elucidation of the structure of atoms is based on a series of experiments. 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना और उनके गुणों के बारे में पता लगाना. परमाणुओं की संरचना को अनेक प्रयोगों के आधार पर समझाया गया है. One of the first indications that atoms are not individual comes from studying static electricity and the conditions under which electricity is conducted by different substance. परमाणुओं के अविभाज्य न होने के संकेतों में से एक संकेत स्थिर विद्युत तथा विभिन्न पदार्थों द्वारा विद्युत चालन की परिस्थितियों का अध्ययन से मिला. चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर, पदार्थों को में आवेशित कण. फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स इन मैटर, लेट्स कैरी आउट द फ्लोइंग एक्टिविटीज. पदार्थों में आवेशित कणों की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें. From these activities can be concluded that on rubbing two objects together they become electrically charged. Where does this charge come from? This question can be answered by knowing that an atom is indivisible and constituents of charged particles. अब इन क्रियाकलापों से हमें यह निष्कर्ष निकलता है कि वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उनमें विद्युत आवेश आ जाता है. यह आवेश कहाँ से आता है, इसका उत्तर तब मिला तब हमें पता चला कि परमाणु विभाज्य और आवेशित कणों में बना हुआ है. Many scientists contribute in revealing the presence of charged particles in an atom. It was now by 1900 that the atoms was not a simple individual particles but containing at least one subatomic particles, the electron
identified by J.J. Thomson even before the electron was identified. E. Goldstream in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged radiations, which ultimately led to the discovery of another subatomic particles. This subatomic particle had a charge equal in magnitude but opposite in sync to that of the electron. Its mass was approximately 2000 times as that of the electron. It was given the name of proton. In general, an electron is represented as E electron and a proton as P. The mass of a proton is taken as 1 unit and its charge as +1. The mass of an electron is considered to be negligible and its charge in -1. परमाणु की उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने के कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं हैं, बल्कि इनमें से कम एक अपरमाणु कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं। इसका पता J.J. थॉमसन ने लगाया था। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले E. गोल्डस्टीन ने 1886 में नए विकिरण की खोज की, जिसे उन्हें केनाल रे का नाम दिया गया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी, जिनके द्वारा अतः दूसरे अपरमाणु कणों की खोज हुई। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है। इनको प्रोटॉन नाम दिया गया। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को E के द्वारा और प्रोटॉन को P+ के द्वारा दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश -1 माना जाता है। It seemed highly likely that an atom was composed of proton and electron mutually balancing their charges. It also appeared that the protons were in the interior of the atoms, for whereas electrons could easily be pulled off but not proton. Now the big question was the atoms form. We will find the answer to the question below. अब ऐसा माना गया है कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को नहीं। अब यह सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कण परमाणु की संरचना किस प्रकार करते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर नीचे मिलेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, परमाणु की संरचना। वी हैव लर्न्ड डाल्टन atomic theory in chapter 3, which suggests that the atom was indivisible and indestructible. But the discovery of two fundamental particles, electron and protons, inside the atoms led to the failure of this aspect of Dalton's atomic theory. It was then considered necessary to know how electrons and protons are arranged within an atom. For explaining this, many scientists proposed various atomic models. J.J. Thomson was the first one to propose a model for the structure of an atom. अब परमाणु संरचना। हमने तीन अध्याय में डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। लेकिन परमाणु के भीतर दो मूल कणों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु इलेक्ट्रॉन की इस धारणा को गलत साबित कर दिया।
अब यह जानना आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित है। इसको समझने के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने भिन्न भिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किया। जे थॉमसन पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन proposed the model of an atom to be similar to that of a Christmas pudding. The electrons in a sphere of positive charge were like current dry fruit in a spherical Christmas pudding. We can also think of a watermelon. The positive charge in the atoms is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are stored in the positively charged sphere like the seeds in the watermelon. 4.1 अब थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इनके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवे की तरह थे। तरबूज का उदाहरण भी ले सकते हैं जिसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा है, जबकि इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में तरबूज की बीज की भांति धंसे हुए हैं। जो डायग्राम 4.1 में आप थॉमसन का परमाणु मॉडल, Thomson's model of an atoms. Thomson proposed that an atom's constant of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it. अब परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। The negative as positive charges are equal in magnitude, so the atoms as a whole is electrically neutral. ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युत रूप में उदासीन होते हैं। Although Thomson's model explained that atoms are electrically neutral, the result of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model, as we will see below. यद्यपि थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई है, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोग के परिणामों को इस मॉडल के द्वारा समझाया नहीं जा सका, जैसा कि हम आगे देखेंगे। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम्स, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. अर्नेस्ट रदरफोर्ड यह जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित है। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। He selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atoms थिक। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वह बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा पार्टिकल्स आर doubly charged helium and since they have a mass of 4 mu, the first moving alpha particle have a considerable amount of energy. अल्फा का द्विवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः यह धनावेशित होते हैं। चूँकि यह इनका द्रव्यमान 4 म्यू होता है, इसलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों को में पर्याप्त ऊर्जा होती है। It was expected that alpha particles
would be deflected by the subatomic particles in the gold atoms. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he did not expect to see large deflection. यह अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अवपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। But the alpha particles scattering experiment gave totally unexpected result. Figure 4.2 the following observations were made. लेकिन अल्फा कण प्रक्रियन प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। जो 4.2 इससे निम्नलिखित परिणाम मिले। Most of the fast moving alpha particles fast straight toward the gold foil. तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। Some of the alpha particles were deflected by the foil by small angles. कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए हैं। Surprisingly, 1 out of every 12,000 particles appeared to rebound. आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। In the world of Rutherford, this result was almost as incredible as if you fire a 15-inch shell at a piece of tissue paper and it comes back and hit you. रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच की तोप के गोले को टिश्यू पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वह लौटकर आपको ही चोट पहुंचाता है। लेट्स थिंक ऑफ एन एक्टिविटी इन एन ओपन फील्ड टू understand the implications of this experiment. Let's a child stand in front of a wall with his eyes closed. Let him throw stones at the wall from a distance. He will hear a sound when each stone strikes the wall. If he repeated this 10 times, he will hear the sound 10 times. But if a blindfolded child were to throw stones at a braided wire fence, most of the stones would not hit them fencing and no sound would be heard. This because there are lots of gaps in the fence which allow the stones to pass through them. इस प्रयोग के निष्कर्ष को निकालने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंखों को बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उससे दीवार पर कुछ दूरी से भी पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वह 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर पत्थर उस घेरे पर नहीं टकराएंगे और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारी खाली स्थान है जिसके बीच से पत्थर निकल जाता है। फॉर फ्लोइंग ए सिमिलर रीजनिंग, रदरफोर्ड कंक्लूडेड फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डेट। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रक्रियन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्न परिणाम निकाले। फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम्स इज एम्प्टी बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। Very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom
एक्यूप्स वेरी लिटिल स्पेस, बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। ए वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री इंडिकेटिंग दैट ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द गोल्ड एटम वेयर कॉन्ट्रैक्टेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम विथ इन द एटम्स। बहुत कम अल्फा कण 180 से विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि वह सोने के परमाणु के पूर्ण धनवेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन से सीमित हैं। From the data he also calculated that the radius of the nucleus is about 10⁵ times less than the radius of the atoms। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम्स विच हैड द फ्लोइंग फीचर्स। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। देयर इज ए possibly charged center in an atoms called the nucleus. Nearly all the mass of the n atoms resides in the nucleus। परमाणु का केंद्र धनवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। The electrons revolve around the nucleus in circular path। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम्स। नाभिक के आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। थैंक यू।